Hello everyone, welcome to MedBrainy. Today we will study the torch infection series. This is the first infections including the torch, that is the toxoplasmosis. Let's see. At first we should know that what the torch infections. It includes T. T stands for toxoplasmosis. O for others. We will see what the others mean. Then R. R stands for rubella. Then C. C stands for cytomegalovirus. Then H. H stands for herpes simplex. Then in case of others, it includes maybe varicella, maybe Zika virus, and maybe syphilis. Understand? It is very important torch infections that toxoplasmosis, varicella, Zika virus, syphilis, it all comes in others. It is a mnemonic that is better to remember. Then the rubella, then the cytomegalovirus, then the herpes simplex. Understand? Let's proceed. Toxoplasmosis, actually, it is seen in pregnant mother. ठीक है? Toxoplasmosis, it is a first disease of the torch infection series. It is all the torch infection series seen in the pregnant mother. Then toxoplasmosis, it is also seen in the pregnant mother when when the pregnant mother came in contact with cat. Understand? When pregnant mother came in contact with cat. Understand? Very important exam questions is it that it is an it comes an important triad. We have to remember that triad. It is very important. ठीक है? Important triad. It can cause. We have to remember it by the mnemonic. Congenital heart disease. कैसे याद रखेंगे? Congenital heart disease. इससे हम लोग इसको याद रखेंगे. CHD. What does C stand for? C stands for chorioretinitis. Chorioretinitis. S stands for hydrocephalus. And D stands for diffuse intracranial calcification. अगर क्वेश्चंस में रहता है that pregnant mother came in contact with cat and in the radiology of brain, ठीक है, there is seen in the hydrocephalus दिख रहा है, diffuse intracranial calcification. It is the ring enhancing lesions. ठीक है, are seen in the toxoplasmosis, also seen in the many other disease. There are many differential diagnosis of ring enhancing lesion, but one of the differential diagnosis is the toxoplasmosis. Understand what is it? It is the ring enhancing lesion. Ring enhancing lesion. ठीक है, इसका ट्राइड क्या हो गया, कैसे याद रखना है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से. ट्राइड इट कैन कॉज अ कोरियोरेटिनाइटिस इन्फेक्शंस. ठीक है, अगर द आई इट occurs, it can cause the hydrocephalus in the brain and it can cause a diffuse intracranial calcifications. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्राइड है हमारे लिए.
से याद रखना है। एक निमोनिक से, निमोनिक क्या है हमारा? निमोनिक है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। और अगर ये फिगर दिखेगा रिंग एनहांसिंग लीजन, देयर आर मेनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बट वन ऑफ द डायग्नोसिस इज़ द टॉक्सोप्लाज़्मोसिस। इसके साथ अगर रिंग एनहांसिंग मिल रहा है तब हमारा डायग्नोसिस टॉक्सोप्लाज़्मोसिस बनेगा। चलो लेट्स सी हाउ वी इन्वेस्टिगेट इट। देन फर्स्ट आता है हमारा सेरोलॉजी। कोई भी है तो सबसे पहले हम लोग सेरोलॉजी से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सेरोलॉजी हम लोग कब करते हैं? इट इज़ डन आफ्टर फर्स्ट वीक। इन्फेक्शन हुआ, हमें पता चलने लगा, साइन सिम्पटम्स आने लगा, उसके बाद करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे इसमें हम लोग जनरली? आईजीएम, एलाइज़ा या फिर आईजीए एलाइज़ा करते हैं। देखो, सबसे पहले है हमारा फर्स्ट वीक में है तो डिज़ीज़ क्या होगा? एक्यूट, ठीक है? और हमें क्या पता है एक्यूट में कौन-सा एंटीबॉडी आईजीएम आते हैं, ठीक है? लेकिन एक आईजीए कैसे हम लोग याद रखेंगे? टॉक्सोप्लाज़्मोसिस। टॉक्सोप्लाज़्मोसिस उसमें क्या आ रहा है? टॉक्सोप्लाज़्मा, देखो डबल ए आ रहा है, ठीक है? इसीलिए आईजीए एलाइज़ा इसके लिए हम लोग रख लेंगे याद, ये याद करने का तरीका है। दूसरा हमारा क्या होता है? आईजीएम, जो भी होगा 1 हफ्ते के बाद तो हमको आईजीजी तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जी तो क्रॉनिक होते हैं। आईजीएम इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट क्या? एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है? समझ में आ गया? ये है हमारा सेरोलॉजी। दूसरा क्या हमारा तरीका हो सकता है? मॉलिक्यूलर मेथड, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं? जीन की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? जीन की टेस्टिंग करते हैं। कौन सी? तो जीन की टेस्टिंग कैसे करते हैं? हम लोग पीसीआर के थ्रू, ठीक है? क्या करते हैं? जीन टेस्टिंग बाय पीसीआर, ठीक है? कौन-सा जीन इम्पोर्टेंट जीन है? जीन का नाम है बीटा 1 जीन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी। बीटा 1 जीन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी। हाउ कैन वी रिमेंबर? चलो एक निमोनिक हम बता रहे हैं। ऐसे याद रखना, दैट इट इज़ अकर इन द प्रेग्नेंट फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, ठीक है? एंड इट इज़ अ बेबी बॉय, इट इज़ अ बेबी बॉय, ठीक है? ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं। इसीलिए बॉय का जो बी है एंड फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट दोनों को तुम बी ले लो, ठीक है? क्या बोल रहे थे? फर्स्ट टाइम फीमेल गेट प्रेग्नेंट एंड ही एंड शी वांट्स बेबी बॉय, ठीक है? बेबी बॉय या बेबी, ठीक है? और उसका बी आ गया और फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, इस दोनों को निमोनिक को मिला करके हमारा बन जाएगा बीटा 1 जीन, ठीक है? इसीलिए हम याद रखेंगे मॉलिक्यूलर टेस्ट जो होता है वो हम लोग कैसे करते हैं? बीटा 1 जीन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी। चलो, अब लास्ट चीज़ आता है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले है कि हम जो है इंट्रायूटेराइन ट्रीटमेंट और फिर दूसरा है आफ्टर बर्थ, ठीक है? यानी कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चा को डिज़ीज़ ना हो। तो जब मदर प्रेग्नेंट है तो हम क्या करते हैं? स्पाइरामाइसिन देते हैं। क्या देते हैं? स्पाइरामाइसिन। इसका क्या ख़ासियत है? इसका ख़ासियत ये है कि ये जो है प्रिवेंट करता है, अम, यानी कि बच्चा को नहीं होने देता है डिज़ीज़। प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ टू बेबी, ठीक है? और दूसरा ट्रीटमेंट है क्या? जब मान लो बर्थ हो गया बेबी का, उसके बाद हमें कुछ साइन सिम्पटम्स कुछ मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो हम दूसरा ट्रीटमेंट है कि एक जो है हम आफ्टर बर्थ देते हैं। क्या देते हैं? हम लोग इसमें 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, पायरिमिथामिन और सल्फाडाइजीन। कैसे याद रखेंगे? पीएस से, पायरिमिथामिन प्लस सल्फाडाइजीन, ठीक है?
टॉक्सोप्लाज़्मोसिस के लिए इतना ही एग्ज़ाम से रिलेटेड इतना याद रहेगा तो फिर ठीक है। इम्पोर्टेंट इज़ द ट्रायड, ये इससे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। एंड वन इम्पोर्टेंट इज़ द ड्रग, कि हम लोग क्या ड्रग देते हैं जिससे कि ये प्रिवेंट हो। तो स्पाइरामाइसिन देते हैं, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन जानना है, जानने के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जीन से हम टेस्टिंग करते हैं। इट इज़ अ बीटा 1 जीन। I will post some questions related to this that has come previously in the examinations like NEET PG, FMG, and I said. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।